محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے روشن ٹی وی۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے جدید سیکریٹریٹ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لے کر ذمہ دار عہدیداران کو فی الفور تکمیل کے مرحلے پر پہنچانے کے لیے احکامات جاری کیے۔ عوام اپنے ذاتی کاموں کے لیے جدید کلیکٹریٹ کا رخ کرنے پر انہیں خوشگوار ماحول کی فراہمی کے لیے شجکاری انجام دینے کے لیے کلکٹر نارائن ریڈی نے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے اربن حلقے کے احاطے میں واقع بابن صاحب پہاڑی برج کی تعمیر کے لیے ریاستی وزیر KTR کی جانب سے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے پر کیا اظہار تشکر۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجیٹی گوردھن نے اندلوئی منڈل میں واقع رائتو ویدیکا بھون میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چیکس کو استفادہ کنندگان میں تقسیم عمل میں لائی۔ کورونا قہر کے دوران محکمہ صحت و پولیس ملازمین کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو PUC کمیٹی چیئرمین آرمن MLA جیون ریڈی نے قابل ستائش قرار دیا۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے اربن حلقے کے احاطے میں واقع بابن صاحب پہاڑی برج کی تعمیر کے لیے ریاستی وزیر KTR کی جانب سے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے پر کیا اظہار تشکر۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے اربن حلقے کے احاطے میں واقع بابن صاحب پہاڑی برج کے بوسیدہ و کمزور ہونے پر نئے برج کے لیے ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR کی جانب سے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے پر تہ دل سے اظہار تشکر پیش کیا۔ CM KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے جدید سیکریٹریٹ کا دورہ کر کے تعمیری کاموں کا لیا جائزہ۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے سیکریٹریٹ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لے کر خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ CM KCR کی ہدایت کے مطابق سیکریٹریٹ کی تعمیری کاموں کو ورک چارٹ کے تحت تعمیر عمل میں لاتے ہوئے فوری طور پر مکمل کرنے کے تعلق سے ذمہ دار عہدیداران و ورک ایجنسی کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ RNB ENC گنپتی ریڈی SE ستی نارائنا لنگا ریڈی EE ششدھر ورک ایجنسی عوامی نمائندے آرکیٹیکٹ آسکار و دیگر نے شرکت کی۔ کورونا قہر کے دوران محکمہ صحت و پولیس ملازمین کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو PUC کمیٹی چیئرمین آرمن MLA جیون ریڈی نے قابل ستائش قرار دیا۔ آرمن رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے شہر کے گورنمنٹ ہاسپٹل کے احاطے میں ہریتا ہرم پروگرام کے تحت پودے لگائے اور بعدازاں انہوں نے کورونا وبا کے دوران قابل ستائش خدمات انجام دینے والے محکمہ صحت کے عہدیداران و پولیس ملازمین کو پھول مالائیں پہناتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے بتایا کہ محکمہ صحت کے عہدیدار نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کووڈ میں مبتلا مریضوں کی خدمات فراہم کی تو دوسری طرف محکمہ پولیس ملازمین نے لاک ڈاؤن کے دوران عوام کو کورونا کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے اہم ترین خدمات انجام دینے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں ان کے ساتھ محکمہ پولیس ملازمین، محکمہ صحت کے عہدیداران، کونسلرز، TRS پارٹی سے وابستہ قائدین، عہدیدار، عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔
عوام اپنے ذاتی کاموں کے لیے کلیکٹریٹ کا رخ کرنے پر انہیں خوشگوار ماحول کی فراہمی کے لیے شجرکاری انجام دینے کے لیے کلکٹر نارائن ریڈی نے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے ہریتا ہرم پروگرام کے تحت نئے تعمیر کردہ جدید کلکٹریٹ کے احاطے میں پودے لگاتے ہوئے کہا کہ ہر ایک پودے کے خشک نہ ہونے کے لیے تمام پودوں کو ہر روز پانی کی سربراہی عمل میں لائی جائے، خشک پودوں کی جگہ پر دوسرے پودے لگا کر ان کی بہتر نگہداشت کرنے کی ہدایت دی۔ اسی طرح سے ہر پودے کو 2 میٹر کے فاصلے پر لگا کر ڈرپ کا قیام عمل میں لانے تک ٹینکر کے ذریعے پودوں کو پانی کی فراہمی عمل میں لانے کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ میونسپل کمشنر جتیشوری پاٹل، RNB SC راجیشور ریڈی، ذمہ دار عہدیداران نے شرکت کی۔ خوش نصیب عازمین حج کے ناموں کا آج اعلان، 150 ممالک کے 6 لاکھ سے زائد عازمین کی درخواستیں وصول۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجی ریڈی گوردھن نے اندلوئی منڈل کے مقام پر واقع رائتو ویدیکا بھون میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چیکس کو استفادہ کنندگان میں تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجی ریڈی گوردھن نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت CM KCR کی زیر قیادت میں ترقی کی جانب رواں دوا ہونے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت تلنگانہ نے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کو غریب عوام کے لیے CM KCR کا اہم ترین تحفہ قرار دیا۔ اسی طرح سے CM ریلیف فنڈ سے غریب افراد کے علاج و معالجے و ادویات کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے CMRF اسکیم متعارف کی گئی۔ ہریتا ہرم کے تحت رائتو ویدیکا بھون کے احاطے میں شجرکاری انجام دی گئی۔ చేస్తున్న సందర్భంలో నాతో నడిచినటువంటి సోదరుడు మన మండల అధ్యక్షుడు రమేష్ నాయుడు గారు, అదేవిధంగా సోదరుమణి డిప్యూటీసీ సోన రవిరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మండల వాస్తవుడు మన ఉపాయ జిల్లాలో DCMS చైర్మన్ మోహన్ గారు, అదేవిధంగా సర్పంచ్ సోదరిమణి వాసం సత్యవ నరసింహ గారు, ఉప సర్పంచ్ రాజేంద్ర గారు, అదేవిధంగా మన పక్క మండల ఎంపీపీ సోదరుడు హనుమంత్ రెడ్డి గారు, ఎంపీటీసీ సోదరుడు సుధాకర్ గారు, DCM డైరెక్టర్ ఈ గ్రామ వాసుడు సోదరుడు ఆనంద్ గారు, అదేవిధంగా ఇందల్వాయి USCS చైర్మన్ గోవర్ధన్, అదేవిధంగా చిన్నపల్లి ఎంపీటీసీ आयमा और मौजिनीन के 3 माह के बकाया जात 12 करोड़ जारी, मुतालिका खवातीन के लिए 16 लाख वजीफे की इजराई, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम। हज 2021 के लिए दरख्वास्तों की वसूली चाहशंबे की रात 10 बजे बंद होगी। याद रहे कि पिछले हफ्ते के दिन तक 6 लाख से ज्यादा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ऑनलाइन हज दरख्वास्तें दाखिल कर चुके थे। बताया गया है कि दरख्वास्त गुजारों में 150 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदे शामिल हैं, जिनमें 59% मर्द और 41% खवातीन शामिल है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई बरसों में हज्जाज की सालाना तादाद 25 लाख से तजाविज़ करती रही थी, मगर कोरोना वबा की वजह से हज 2020 में सिर्फ 1000 अफराद को हज की इजाजत दी गई थी, जबकि ये तादाद 2021 में 60,000 की गई है। वजारत हज व उम्रे के कंप्यूटर सिस्टम में 6 लाख से जायद आज़मीन के नाम दर्ज हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 60,000 अफराद को अमसाल हज का इजाजत नामा जारी होगा, जबकि 6 लाख से जायद फर्जंदान तौहीदुल्लाह के घर की ज़ियारत की आरज़ूमंद है। वजारत हज व उम्रे के मुताबिक इन 60,000 खुश नसीबों के नाम का ऐलान जुम्मा 25 जून की दोपहर में किया जाएगा। ये सारी कार्रवाई कंप्यूटर सिस्टम के जरिए ही होगी। इंतखाब के जो ज़ाबित वज़रात ने मुकर्रर किए हैं, इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर इजाज़त नामे जारी होंगे। अमसाल हज के लिए 3 पैकेज रखे गए हैं, जिनमें पहले पैकेज की कीमत 16,560 रियाल जो मिनी टावर का है, जबकि दूसरा पैकेज 14,381 रियाल और तीसरा पैकेज 12,113 रियाल का है। दूसरे और तीसरे पैकेज के हज्जाज मिनी में मरा में खैमों में क़याम करेंगे। मेंढोरा मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी मंडल सदर के हाथों 21 मुस्तहिकीन में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई।
सदनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आयमा और मौजनीन के एजाजी के बखैरजात के तौर पर 3 माह की रकम 12,03,95,000 रुपए जारी किए हैं। इन्होंने रकम की जुराई के फौरी बाद ओहदेदारों को हिदायत दी कि आयमा और मौजनीन के बैंक अकाउंट्स में रकम की मुंतकिली को यकीनी बनाए। रात देर गए तक ओहदेदारों ने इस सिलसिले में कार्रवाई की और 10,000 आयमा और मौजनीन के अकाउंट में 3 माह का एजाजिया जमा कर दिया गया। मार्च तक की बखैरजात की जुराई मुकम्मल हो चुकी है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि बाकी 2 माह का एजाजिया अनकरीब जारी किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने ग्रांट एंड के तहत मुतालिका खवातीन के पेंशन के तौर पर 16,49,969 रुपए जारी किए। अदालतों के अहकामात के मुताबिक मुतालिका खवातीन को वजीफा जारी किया जाता है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि बजट की जुराई में किसी कदर ताखिर हुई है, लिहाजा जून तक का एजाजिया जारी नहीं किया जा सका। इन्होंने कहा कि महकमे फाइनेंस से जैसे ही बजट जारी होगा बाकी 2 माह के एजाजी की रकम अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि आयमा और मौजनीन के एजाजी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मिसाली स्कीम शुरू की है। आयमा और मौजनीन की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने ये स्कीम मुतारुफ की, जिससे 10,000 से जायद आयमा मौजनीन इस्तेफादा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि एजाजी के लिए दाखिल करदा नई दरख्वास्तों की जाँच के बाद एक्सवी की जाएगी। 3 माह के बखैरजात के तौर पर हैदराबाद में 1,702 आयमा और मौजनीन के अकाउंट्स में 85 लाख की रकम मुंतकिल की गई। निर्मल के लिए 10,65,000 रुपए, करीमनगर 14 लाख रुपए, जगतियाल 12,80,000, वरंगल अर्बन 11,40,000, मेदक 13,65,000, संगारेड्डी 36 लाख, सिद्दीपेट 15,85,000, खम्मम 13,55,000, नलगोंडा 22,30,000, सूर्यापेट 13,65,000, निजामाबाद 35,45,000, कामारेड्डी 13,40,000, महबूब नगर 20,95,000, नागर कर्नूल 10,50,000, गदवाल 11,70,000 और रंगारेड्डी में 75,05,000 की रकम जारी की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर एमपीडीओ ने एपीओ टीए के हमरा हरिता हरम के तहत डंपिंग यार्ड को जाने के रास्ते में खोदे गए गढ़ों का मुआयना किया। मेंढुरा मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी मंडल सदर नागमपेट शेखर रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा सीएम रिलीफ फंड चेक्स को पार्टी दफ्तर में 21 इस्तीफादा कुनगान को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नासाज तबीयत के बाइस ज़ेर इलाज हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजे व अद्वियात के अखराजात की अदायगी के तौर पर इन्हें सीएमआरएफ चेक्स मंजूर करके इनकी कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं और इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की मियार पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने बताया कि तारीख में पहली मरतबा जिले के कई एक अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम अमल में लाते हुए गरीबों को मुकम्मल और बेहतर आला मियार का इलाज फराहम करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इस्तीफादा कुनगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी सरपंच, एमपीटीसी मंडल, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम ने कोरोना वैक्सीन व कोविड उसूल व ज़ाबित पर अवाम को अमल पैरा करवाने के मकसद के तहत वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े बस स्टैंड के कच्चिया मस्जिद, गांधी चौक, दीगर मुकामात पर मुकीम अवाम को शोर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर एमपीडीओ संतोष कुमार ने एपीओ इंदिरा टीए रविंदर के हमरा दौरा करते हुए हरिता हरम प्रोग्राम के तहत खोदे गए गढ़ों का और डंपिंग यार्ड का जायजा लेते हुए बताया कि गांव में सफाई को सही तरीके से बरकरार रखना चाहिए, गढ़ों की खुदाई दर्जा बंदी की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि हर नर्सरी में पौधे लगाते हुए इनकी बेहतर निगहदाश्त करने का इजहार करते हुए कहा कि गाँव के अहाते में मुकम्मल तौर पर पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ पंचायत ईओ गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। इंटर सेकेंड ईयर के नताज की जुराई के लिए रहनुमाना खतूत को खतियत। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम की ज़ेरे निगरानी में कोरोना वैक्सीन, टीका व कोविड-19 के उसूल और ज़ाबित पर अमल पैरा करवाने के मकसद के तहत निजामाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े बस स्टैंड, कच्चिया मस्जिद, गांधी चौक और दीगर मुकामात पर मुक़ीम अवाम को शौर बेदारी अमल में लाते हुए
कहा कि कोरोना टीके से जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है, अवाम यकीनी तौर पर इस्तेफादा करे और कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न देते हुए करीब में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर कोरोना टीका ले ले। इसी तरह से 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद कोरोना टीका लेकर खुद को और अपने अरकान ख़ानदान को महफूज रखे और तमाम अवाम सोशल डिस्टेंस पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए अगर किसी को कोरोना के अलामात महसूस होने पर करीबी हॉस्पिटल पहुँचकर डॉक्टर से तशख़ीस करवा के इनके सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ वन टाउन पुलिस स्टेशन CI अंजनलू पुलिस कल्चरल टीम व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के 6 अजला में एयरपोर्ट के क़याम को सरकारी मंजूरी। निजामाबाद जिले जकरानपल्ली में एयरपोर्ट के क़याम में तमाम रुकावटें दूर। हुकूमत ने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के नताइज जारी करने के लिए रहनुमा ख़ुतूत को क़तियत दे दी है। इंटर फर्स्ट ईयर में तुलबा ने मुख्तलिफ मज़ामीन में जो मार्क्स हासिल की थी वही मार्क्स सेकेंड ईयर में तुलबा को देने की हिकमत अमली तैयार की है। बवसूख ज़राए से पता चला है कि इंटर सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स के मुकम्मल मार्क्स देने का फैसला किया गया। बैकलॉग्स रहने की सूरत में 35 मार्क्स मुख्तस किए जाएंगे। कान के तौर पर दरख्वास्तें दाखिल करने वाले तुलबा को 35% मार्क्स देने के रहनुमा ख़ुतूत में सराहत की गई है। नताइज से मुतमईन न होने वाले तुलबा के लिए हालात ठीक होने पर इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा जिसमें तुलबा हिस्सा ले सकते हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील ने अहकाम जारी कर दिए हैं। ज़राए से पता चला है कि नताइज से मुतालिक रहनुमा ख़ुतूत की इजराई के बाद इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की नताइज जारी करने की राहें हमवार हो गई है। अंदरून एक हफ्ता किसी भी वक्त नताइज जारी किए जा सकते हैं। सनसनीखेज इंकशाफ। तेलंगाना के ज़िमनी इंतखाबात में ड्यूटी अंजाम देने वाले 17 टीचर्स कोरोना से फौत। तेलंगाना के 6 अजला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम को बिलाखिर मंजूरी दे दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से निज़ामाबाद, आदिलाबाद, पेदपल्ली, वरंगल, महबूब नगर, कुत्तागुड़म में एयरपोर्ट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने कुछ माह कबल मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे के मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सिलसिले में तबादला ख्याल किया था। वज़ीर आला की ये कोशिश का नतीजा खेज़ साबित हुई और रियासत तेलंगाना के इन 6 अजला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम को सरकारी मंजूरी दे दी गई है। ज़िला निज़ामाबाद ज़िले के जकरानपल्ली मंडल में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में तकरीबन 15 साल अरसे से कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क़वायद के मुताबिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम के लिए 500 एकड़ अराज़ी दरकार है। जकरानपल्ली में 500 एकड़ अराज़ी के हुसूल के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की गई। यहाँ के किसान तबके के अलावा ज़मीनात के मालिकीन से तबादला ख्याल किया गया। कीमतें मुकर्रर की गई। कई एतराज़ात के बाद 500 एकड़ अराज़ी हासिल की गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेक्निकल कमेटी ने कई मरतबा जकरानपल्ली का दौरा करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुआयना किया। पहले दौरे के बाद जकरानपल्ली में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम के लिए हालात को नासाजगार करार दिया गया क्योंकि यहाँ पर दरकार अराज़ी की किल्लत पाई जा रही थी। लेकिन हुकूमत के नुमाइंदों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क़वायद के मुताबिक 500 एकड़ अराज़ी के हुसूल को यकीनी बनाया। कई मरतबा दौरे किए। बिलाखिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से निज़ामाबाद ज़िले की जकरानपल्ली में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम को सरकारी मंजूरी दे दी गई है। ज़िला निज़ामाबाद में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम से ज़िला निज़ामाबाद की तरक्की की राहें हमवार होगी। दुनिया भर की मशहूर व मुआरुफ खानगी कंपनियों को हवाई जहाज़ के ज़रिए आमदोरफ्त की सहूलत हासिल होने पर कंपनियों के क़याम का सिलसिला शुरू होगा जिससे रोज़गार हासिल होगा और तरक्की की राहें हमवार होगी। स्कूल्स की दोबारा कुशादगी की खबर। स्कूल बैग्स बनाने वालों के लिए उम्मीद की किरण। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासत में अभी तक 97 लाख अफराद की टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है। इन्होंने कहा कि 83 लाख अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। इन्होंने कहा कि हुकूमत जुमला 2.2 करोड़ अफराद की टीका अंदाजी तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने का निशाना रखती है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 100 मराकज़ पर टीका अंदाजी का इंतज़ाम किया गया। 24 मोबाइल वैन्स के जरिए टीका अंदाजी जारी है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में रोज़ाना 1500 से ज़ायद वैक्सीन खुराक दी जा रही है। श्रीनिवास राव ने बताया कि चारशंबे से रियासत में 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की टीका अंदाजी का आगाज़ हुआ है।
आइंदा 2 दिनों में रियासत में 1 करोड़ अफराद की टीका अंदाजी मुकम्मल हो जाएगी। जुलाई में तेलंगाना को वैक्सीन की 21 लाख खुराक हासिल होंगी। टीचर्स अपने शनाख्ती कार्ड पेश करते हुए वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में अभी तक नए वायरस डेल्टा प्लस की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना इस नए वायरस से महफूज रहेगा। स्कूल्स में फिजिकल क्लासेस के लिए तलबा की शिरकत लाजमी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। हुकूमत हिंद के महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से मोटर व्हीकल दस्तावेजात बमशमूल लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि 20 फरवरी 2020 तक अपनी मुद्दत खो चुके हैं, इनकी मुद्दत में इजाफा करने का फैसला करते हुए 30 जून 2021 तक तौसी देने के अहकामात जारी किए हैं, जिससे लाखों अफराद को फायदा होने के इम्कानात है। लेकिन रियासत तेलंगाना में मरकजी हुकूमत के इन अहकामात पर अमलावरी के बजाय लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तजदीद के लिए जुर्माना आयद किया जा रहा है और मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलत से इस्तेफादे का अवाम को मौका हासिल नहीं हो रहा है। मरकजी हुकूमत की वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान अपने मियाद मुकम्मल करने वाले मोटर व्हीकल के दस्तावेजात की मुद्दत में इजाफा करने के इक़दाम किए गए हैं और इन लोगों को बगैर किसी जुर्माने के अपने दस्तावेजात की तजदीद का मौका फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से तमाम रियासतों की रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो कि लाइसेंस के अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर सर्टिफिकेट के इजराए के मजाज इदारा जात में इनको अहकामात की नक़ल रवाना की जा चुकी है। लेकिन रियासत तेलंगाना में इन अहकामात पर अमलावरी के बजाय इस्तेफादे का मौका फराहम करने से इनकार किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के बदउनवानियों में मुलविस सरफहरिस्त महकमे जात में RTA का शुमार होता है और इस महकमे की जानिब से मरकजी हुकूमत के अहकामात पर अमलावरी के बजाय फरवरी 2020 या इसके बाद भी जिन दस्तावेजात की मियाद खत्म हो चुके हैं, इनकी तजदीद के लिए एजेंटों के जरिए भारी रकूमात वसूल की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं, जबकि मरकजी हुकूमत की वज़ारत ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर इस सिलसिले में जारी करदा अहकामात की नकल मौजूद है। रियासती हुकूमत की जानिब से अगर मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर अमलावरी के इक़दाम किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में ऑटो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स के अलावा मालिकीन और कैब ड्राइवर्स और मालिकीन को काफी राहत हासिल हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन के सबब इनके दस्तावेजात की मुद्दत खत्म होने के बावजूद वो इनकी तजदीद नहीं करवा पाए हैं और अब इन्हें जुर्माने अदा करना पड़ रहा है। आधार कार्ड को पासपोर्ट से लिंक करने का काम जल्द मुकम्मल करने वजीर खारिजा का तयक़ुन। डिग्री के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स हासिल करना लाजमी है। ताहम कोरोना के बाइस तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के सालाना इम्तिहान को मनसूख करते हुए फर्स्ट ईयर में तलबा ने जो मार्क्स हासिल किए हैं वही मार्क्स सेकेंड ईयर में देने का फैसला करते हुए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। साथ ही फेल होने वाले तलबा और इम्तिहान तहरीर न करने वाले तलबा को 35% मार्क्स देने का फैसला किया गया है, जिससे 35% मार्क्स से कामयाब होने वाले तलबा अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हो गए हैं और इनमें तशवीश पाई जाती है। गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 1,99,019 तलबा फेल हुए या कई तलबा 1 या 2 मज़ामिन और चंद तलबा 3-4 मज़ामिन में भी नाकाम हुए हैं। दूसरी जानिब इम्तिहान तहरीर ना करने वाले तलबा भी मौजूद है। हुकूमत ने ऐसे तमाम तलबा को 35% मार्क्स से कामयाब बनाने का फैसला किया है। साथ ही ओपन स्कूल सोसाइटी ने भी इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से दिए जाने वाले मार्क्स की बुनियाद पर अपने हुदूद में शामिल इंटरमीडिएट के तलबा को 35% मार्क्स फराहम करने का जायजा ले रही हैं, जिससे 50,000 तलबा में तशवीश की लहर पाई जाती है। कोरोना बहरान की वजह से गुज़िश्ता साल भी 40,000 तलबा को इंटरमीडिएट में 35% मार्क्स दिए गए थे। दूसरी रियासतों के खानगी तालीमी इदारों, खानगी यूनिवर्सिटीज डिग्री B.Tech, B फार्मेसी, लॉ जैसे कोर्सेज में दाखिला हासिल करने से महरूम रह गए। 35% मार्क्स देने पर तलबा कामयाब तो होंगे मगर वो आला तालीम कोर्सेज में दाखिला हासिल नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और दूसरे डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए तलबा का इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में 45% मार्क्स से कामयाबी हासिल करना लाजमी है। हुकूमत के कंट्रोल में रहने वाले कौमी तालीमी इदारों और रियासत में MSET के लिए इन
قواعد کو برخواست بھی کیا جا سکتا ہے تو خانگی تعلیمی اداروں میں یہ شرط برقرار رہے گی۔ مرکزی حکومت نے گزشتہ سال JEE کے طرز پر امتحانات تحریر کرنے اور IIT میں داخلوں کے لیے 45% مارکس کے قواعد کو کورونا کی وجہ سے برخواست کیا تھا، لیکن خانگی تعلیمی ادارے خانگی یونیورسٹیز نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 45% سے کم مارکس حاصل کرنے والے طلباء کی بہت کم تعداد ہے۔ ایسے طلباء کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنے کا حکومت جائزہ لے رہی ہے۔ پریکٹیکل میں 100% مارکس دینے کی وجہ سے انٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں 45% سے کم مارکس حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ عالمی رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے کورونا وبا کے باعث فوت ہونے والے مہلوکین خاندان سے ملاقات کر کے دیا پرسہ۔ موسم برسات کے آغاز کے بعد سے ضلع نظام آباد میں زبردست بارش کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ضلع کے مختلف مقامات پر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ضلع نظام آباد کے 32 منڈلوں میں معمول سے زیادہ بارش کا امکان ہے۔ بارش کی وجہ سے کاشت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چھوٹی ندیوں کے لبریز ہونے کے سبب بعض موضوعات سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ پوچمپاڑ پروجیکٹ کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے پروجیکٹ کے سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بابلی پروجیکٹ کے دروازے کھول دیے جانے سے پروجیکٹ میں 16,800 کیوکس پانی داخل ہو رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پروجیکٹ سے زرعی شعبے کے لیے 350 کیوکس اور مشن بھگیرتا کے تحت 152 کیوکس پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 1091 فٹ 90 TMC ہے، جہاں جمعے کے دن تک پروجیکٹ میں 1064.60 فٹ 19.56 TMC پانی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پڑوسی ریاست مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کی وجہ سے بابلی پروجیکٹ پانی سے لبریز ہو چکا ہے، جس سے پروجیکٹ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ بابلی پروجیکٹ سے 16,000 کیوکس پانی پوچمپاڑ میں داخل ہو رہا ہے۔ ضلع نظام آباد بالکنڈ حلقہ اسمبلی ایرگٹلا منڈل موضع گمیریال میں ضلع کلکٹر کے احکامات کے مطابق ANM آنگن واڑی کارکن و آشا ورکرز و مقامی سیکرٹری نے گھر گھر کا دورہ کر کے مقامی عوام کو موسمی امراض کے متعلق شعور بیداری عمل میں لائی۔ آرمی رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے طوفانی دورہ کرتے ہوئے شہر میں حال ہی میں کورونا وبا کے باعث فوت ہونے والے کے مہلوکین خاندان سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت پیش کر کے پرسہ دے کر ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا کہ CM KCR سے ملاقات کر کے مالی امداد فراہم کرنے کے تعلق سے تیقن دیا۔ اس پروگرام میں TRS پارٹی سے وابستہ قائدین، کونسلرز و دیگر نے شرکت کی۔ بھیمگل گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل نے تلنگانہ ہریتا ہرم پروگرام کے تحت کالج کے احاطے میں شجرکاری انجام دی۔ ضلع نظام آباد بالکنڈ حلقہ اسمبلی ایرگٹلا منڈل موضع گمیریال میں ANM سملتا آنگن واڑی کارکن، آشا ورکرز و مقامی سیکرٹری نے ضلع کلکٹر کے احکامات کے مطابق مانسون کے موسم میں موسمی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے تحت گھر گھر کا دورہ کرتے ہوئے موسمی امراض کے متعلق مفید صلاح و مشورہ دیتے ہوئے ہر افراد خاندان کو شعور بیداری کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے موضع میں مقیم عوام کو پانی کا ذخیرہ جمع ہونے پر فوری طور پر پانی کی نکاسی عمل میں لاتے ہوئے کچرے و گڑھے اور نالے کی صفائی ہر روز کی جائے۔ اسی طرح سے آس پاس کے اطراف میں کوئی کوڑا کچرا اور ٹائر و خاص طور پر ناریل ٹوکروں کو فوری طور پر ہٹاتے ہوئے موسمی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے تعلق سے بتایا گیا۔ اس پروگرام میں آنگن واڑی کارکن، آشا ورکرز و دیگر نے شرکت کی۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجویڈی گوردھن نے اندلوئی منڈل کے مقام پر واقع رائتو ویدیکا بھون میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ بھیمگل کے گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل ابا چرنجیوی نے تلنگانہ ہریتا ہرم پروگرام کے تحت جونیئر کالج کے احاطے میں پودے لگاتے ہوئے کہا کہ CM KCR کی جانب سے شروع کردہ ہریتا ہرم و شجرکاری پروگرام کے تحت کالج کے احاطے میں 35 پودے لگانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کالج میں انٹر سال اول و دوم کے لیے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ فوری طور پر لیکچر سے ربط پیدا کر کے کالج میں داخلہ حاصل کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں کرشنا داس کالج لیکچررز و دیگر نے شرکت کی۔ بھیمگل منڈل کے زرعی عہدیدار عبد الملک نے سرکل انسپکٹر کے ہمراہ منڈل کے مقام پر واقع بیجوں و کیڑے مار ادویات دکانوں کی تنقیح عمل میں لائی۔ بھیمگل منڈل کے زرعی عہدیدار عبد الملک نے سرکل انسپکٹر پربھاکر کے ہمراہ منڈل کے مقام پر واقع بیجوں و کیڑے مار ادویات کی دکانوں کی تنقیح عمل میں لاتے ہوئے
कहा कि किसानों को दिए जाने वाले बीजों को खरीदी करते वक्त यकीनी तौर पर रसीद फराहम करने की हिदायत दी और इन्होंने कहा कि नकली बीजों को फरोख्त करने वाले दुकान मालिकीन के खिलाफ केस दर्ज करके सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ AEO भार्गु, प्रणीत, राजा, किसान व दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा सरकारी दवाखाने इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद का बयान, कोरोना वायरस की वबा अभी भी जारी, गफलत में ना रहे, अवाम को हिदायत। बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद ने बताया कि कोरोना की वबा जारी है, एहतियात बरते, अवामी फासले की बरकरारी और मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों में कोरोना वबा जैसी बीमारी की वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन रोजाना 50 से ज्यादा केसेस के मुआयने किए जा रहे हैं, जिसमें आज 1 या 2 केसेस दिखाई दे रहे हैं। अवाम से कहा कि कोरोना से गफलत में ना रहे, मासूम बच्चों पर भी असर पड़ सकता है, बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दाम लिए जाने की अशद जरूरत है। बांसवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन मुहिम शुरू की गई थी, कसीर तादाद में अवाम ने इस्तिफादा हासिल किया। इस वबा के पेश नजर असेंबली स्पीकर बोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ऑक्सीजन की फराहमी अमल में लाई गई, जो बांसवाड़ा हलके के लिए एक मिसाल साबित हुई। చాలా కేసెస్ ఇక్కడ వచ్చాయి, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం జర ఆ కేసు తగ్గుదల మేము టెస్ట్ చేస్తున్న రోజుకు ఒక 50-60 కేసులు టెస్టింగ్ చేస్తున్నాము. ఆ టెస్ట్లో ఇప్పుడు అంతా నెగిటివిటీ బాగా ఉన్నది, బిలో 1-2 కన్నా చాలా తక్కువ ఉన్నది. వ్యాక్సినేషన్ కూడా మేము ఇక్కడ హై రిస్క్ గ్రూప్లకు ప్లస్ మన టీచర్స్కు ఆల్ షాప్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యాక్సినేషన్ కూడా హై రిస్క్ వాళ్ళకు కూడా ఎబో 45 ఇయర్స్ కూడా వ్యాక్సినేషన్ కూడా కొత్త బిల్డింగ్లో పెట్టాము. అయితే మా దగ్గర ఇప్పుడు కొత్తగా మన తెలంగాణ శాసన సభాపతి స్పీకర్ గారు ప్లస్ మా HDS మెంబర్ గారు ఇక్కడికి 100 బెడ్ ఆక్సిజన్ సప్లై ఇచ్చారు. ఒకవేళ 100 బెడ్కు ఆక్సిజన్ అవసరం ఉన్నా కానీ మా దగ్గర ఫెసిలిటీ ఉంది. త్వరలో మాకు స్పీకర్ గారు 10 బెడ్ ICU కూడా అలాట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు త్వరలో. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लेकर जिम्मेदार ओहलदारान को फिलफूर तकमील के मरहले पर पहुंचाने के लिए अहकामात जारी किए। अवाम अपने ज़ाती कामों के लिए जदीद कलेक्ट्रेट का रुख करने पर इन्हें खुशगवार माहौल की फराहमी के लिए शजकारी अंजाम देने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने अर्बन हलके के हाथे में वाक़े बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज की तामीर के लिए रियासती वज़ीर KTR की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने इंदलवई मंडल में वाक़े रायतु वेदिका भवन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स को इस्तेफादा कुनिनगान में तकसीम अमल में लाई। कोरोना कहर के दौरान महकमे सेहत व पुलिस मुलाजमीन की जानिब से फराहम करदा खिदमात को PUC कमेटी चेयरमैन ऑनरेबल जीवन रेड्डी ने काबिल सताइश करार दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।